Hello friends, this is your educator Charanjit Kaur and this video is beneficial for the students of medical and non-medical from boards and computational point of view. Today's topic of discussion is electron displacement in organic compounds. So, we know that electron displacement, these refers to either partial or complete displacement of electron. From complete displacement of electron, we mean that there is formation of ionic bonds. Alright, in ionic bonds we have already seen that like this is Na and this is Cl. Na has 11 atomic number, Ca has 17 atomic number. It has configuration 2, 8 and 1. It has configuration of 2, 8 and 7. So it requires one electron to complete its octet. Therefore, this octet will be only completed when this Na will donate one of its electron to this. So this is what? This is the complete displacement of electrons. While in case of electron displacement in partial case, here partial charges appears. Therefore it means no complete bond transfer occurs. Only charges are induced due to partial displacement of electrons. Now how this will occur, I will explain you this in further topic. Alright, so these electron displacements, these are of 4 types. Alright, and these are inductive effect, electromagnetic effect, resonance and hyperconjugation. And in today's lecture we will discuss what is inductive effect. This inductive effect is also called created effect, or we can say this effect is induced. What do you mean by induce? Induce is when one person, like I'm giving you an example, like one person, he pokes you, like he induces you, alright, so that you get angry. Alright, so meaning of induce is when somebody pokes you. That's why, मतलब ये खुद से नहीं आया, किसी ने आके ये इफेक्ट जनरेट करवाया. So that's why the word comes inductive. Alright, अब we can explain this inductive effect by first of all considering that what are the types of the compound, covalent compound which exist in the nature. So covalent compounds are either polar or non-polar. So we know that in non-polar case there is mutual sharing of what? These two electrons, and the sharing is 50-50%. Alright, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं कि दो फ्रेंड्स हैं, they have परचेज्ड वन बुक बाय हिम एंड वन बुक बाय हिम. अब दोनों क्या करते हैं, दोनों शेयरिंग के साथ वो बुक्स जो है पढ़ते हैं दोनों. ठीक है, जितना डोमिनेटिंग इफेक्ट इस कार्बन का है उस बुक के ऊपर, उतना ही इस कार्बन का है उसकी बुक के ऊपर. मतलब जो बुक्स है यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है. देयरफॉर देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग. ऑलराइट, तो दोनों ही बराबर का इफेक्ट शो करते हैं. बट जो पोलर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, पोलर वाले कंपाउंड्स होंगे, उसमें क्या होता है कि हमारा जो एक पर्सन है से सेकंड पर्सन है, अब इसने भी बुक ली, इसने भी बुक ली, बट होता क्या है, एक जो होता है वो काफ़ी डोमिनेटिंग होता है. वो क्या करता है कि अपनी बुक तो पढ़ता ही है लेकिन दूसरे वाले की बुक का भी अपने ऊपर का ही कंट्रोल रखता है और अपनी बुक इसको अच्छे से देता भी नहीं है. ठीक है, तो इट मीन्स जो यहाँ पे जो शेयरिंग होती है वहाँ पे शेयरिंग की बजाय ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास रहने के बजाय थोड़ा सा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है किसकी, एक्स की तरफ. दैट्स वाई ये इसकी तरफ को बाउंडेड रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स. उससे क्या होगा जी, उससे ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब भी इसकी तरफ बाउंडेड रहेंगे तो इसकी विसिनिटी में इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अब ये पार्शियल वर्ड है. पार्शियल क्यों बोला मैंने, बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, बॉन्ड अभी भी दोनों के बीच में बना हुआ है. यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है कि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ और ये पूरा इलेक्ट्रॉन इसके पास गया. इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्टेट में भी रहेगा, कार्बन के ऑक्टेट में भी इस इलेक्ट्रॉन की कॉन्ट्रीब्यूशन है एक्स वाले इलेक्ट्रॉन की, सो दैट इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके. बट ये जो है किसकी तरफ लाई करके रह रहा है, दैट इज हमारा एक्स. सो इस एक्स को वी से दीज एक्सिस आर व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स. ऑलराइट, सो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स होते हैं दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू विच जो ये पार्शियल चार्जेस क्रिएट करते हैं वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ
खींच के रखते हैं, ठीक है। दे अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देमसेल्व्स एंड क्रिएट डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऑन देम, एंड ऑन अदर साइड व्हाट हैपन्स, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम्स, ठीक है। अब इस वजह से अब ये क्या हुआ, एक चार्ज क्या हुआ, इंड्यूस हुआ, ठीक है। किसकी वजह से इंड्यूस हुआ, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स। अब इसकी वजह से अब हम पढ़ेंगे अब इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कैसे चलते हैं, ठीक। सो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर वन ऑफ द इफेक्ट इज प्लस आई इफेक्ट एंड अदर इफेक्टिव माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। सो अब जो है लेट से वी हैव फर्स्ट केस, ये जो है इसको साई कहते हैं एंड दिस इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट केस इज आई हैव अ कार्बन चेन and with this carbon chain one of the x element is attached to the carbon, ठीक है। अब इस x element की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है that is very very large than that of the carbon, okay। अब अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, अभी we have seen कि पोलर कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की तरफ को जो शेयर्ड पेयर है that is उसकी तरफ को वो बाउंडेड रहता है, therefore what will happen, partial negative charge will generate on this x, alright। और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कार्बन नंबर द फर्स्ट कार्बन डेट इज अटैच्ड टू दिस अल्फा कार्बन, इसके ऊपर विच चार्ज विल जनरेट, पार्शियल पॉजिटिव, alright। अब दिस कार्बन इट अटेन्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इट विल ट्राई टू कम्बैट दिस पॉजिटिव चार्ज। अब इसको अपना हंगर खत्म करना है इलेक्ट्रॉन्स का, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सो ये क्या करेगा, अब ये ट्राई करेगा, अदरवाइज ये दोनों क्या थे, नॉन पोलर कार्बन थे, बट ड्यू टू इंड्यूस्ड इफेक्ट ऑफ दिस एक्स ऑन दिस कार्बन विल ट्राई टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बिकॉज इट हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स विच वर otherwise shared between these two, it will attract those electron and it will try to complete its octet, due to which some delta dash positive, some other partial positive charge will generate on this carbon, alright। अब similarly this carbon will also try to complete its octet, it will again attract other charge electrons from the neighboring carbon and this effect will goes on, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या हुआ जी, ड्यू टू वन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओके, इट शोड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट फ्रॉम द होल कार्बन चेन, दिस एक्स इट इज विदड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। पूरी कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन इस तरफ डायरेक्शन में जा रहे हैं टूवर्ड्स हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑलराइट। सो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है ये इसके साथ लगा हुआ है और वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहा है, तो जो हमारी पूरी कार्बन चेन होती है इट जनरेट्स व्हाट, पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस, तो पूरी कार्बन चेन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इंटेंसिटी या फिर हाउ विल यू जनरेट एन ऑर्डर फॉर दिस पार्शियल चार्जेस, alright, so the partial charge on the carbon number 1 that is delta positive is of highest intensity and then the intensity goes on decreasing, ठीक है, as the distance from the electronegative element of the carbon adjoined it increases, the intensity of the charge generated that decreases। सिमिलर सी बात है, अगर कोई चार्ज दूर पड़ा है तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी जितना डिस्टेंस इंक्रीज करता रहा होगा, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसकी इंटेंसिटी सबसे कम होगी, ऑलराइट। अब जहाँ पे एक दो चीज़ें हैं वो आई हैव टू टेल यू दैट कि जो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस जो हैं हमारे जनरेट हुए हैं ऑन कार्बन चेन, इट इज प्रोड्यूस ओनली टिल 3 to 4 कार्बन्स, ऑलराइट। उसके बाद ये पॉजिटिव चार्जेस इतने कम इंटेंसिटी के होते हैं कि दे आर ऑफ मतलब नो मीनिंग, दैट्स वाई जब भी हम कभी भी इफेक्ट को स्टडी करते हैं वी टेक टिल नंबर 4 कार्बन, ठीक है। और इलेक्ट्रो विड्रॉइंग इफेक्ट्स की मैं कुछ एग्जांपल अगर बोलूँ तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट हो सकता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, मतलब हमारे जो हेलोजन ग्रुप्स होते हैं, ऑलराइट। जो नाइट्रो ग्रुप है ये हमारा कुछ इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं जो कि इसके साथ अटैच होके हमें -I इफेक्ट शो करते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट वी विल मूव टू
plus I effect, which is also called electron releasing effect. So now in this case, the electronegativity of the group attached, that is Y, is very less than that of the adjoining carbon. All right, so electronegativity is very less than that of the carbon. So this is what, this is इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप. अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप क्या करेगा, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी कम है, तो अब कार्बन यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो कार्बन जो शेयर्ड पेयर होगा इसको अपनी तरफ को अट्रैक्ट करके रखेगा. मतलब जो Y का जो कार्बन इलेक्ट्रॉन था दैट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इसका कार्बन. ऑल राइट, सो ड्यू टू विच अब Y के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टूवर्ड्स द कार्बन. अब इसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज कार्बन हैज़ अट्रैक्टेड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, तो कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा. अब बिकॉज इसके पास एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो इट ऑलरेडी हैड इट्स 4 इलेक्ट्रॉन, अब इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज भी आ गया, ड्यू टू विच अब इट विल ट्राई टू डिक्रीज द चार्ज ऑन इट सो दैट ये न्यूट्रल हो सके. सो द एडजॉइनिंग कार्बन which is this carbon number 2, so what will this do, ये जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसके कंपैरेटिवली ये इसको स्टेबलाइज करने के लिए ही इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, एंड सिमिलरली दिस प्रोसेस विल गोज ऑन टिल कार्बन नंबर 4. ठीक है, तो ये जो है ड्यू टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑन अटैच टू द कार्बन, जो पूरी कार्बन चेन होती है इट जनरेट्स नेगेटिव चार्ज. सो ये जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं. प्लस आई इफेक्ट में कार्बन चेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है बिकॉज प्लस आई इफेक्ट इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्यों है जी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इसलिए है क्योंकि इसके साथ एक ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खुद इतनी कम है, ये कैसे लेगा. ठीक है, तो इस करके इसका काम क्या है, डोनेट करना, देना. इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी कहते हैं. ठीक है, अब इसको बहुत ही सिंपल वे से मैं याद करने का तरीका बताती हूँ तुम्हें, कि तुम ये समझो कि जो भला आदमी है दैट ऑलवेज डोनेट्स, वो हमेशा डोनेट करने में वो है अपनी वो विश्वास रखता है. तो ठीक है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव मतलब जो भला आदमी होगा, दैट विल व्हाट डू, दैट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन, वो अपने इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा. ठीक है, और वो उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन चेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग. ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो होता है, या फिर जो कह लो कि जो बुरा आदमी है उसका काम क्या है, सिर्फ लेते रहना. ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जैसे ही उसके साथ होगा इट विल शो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट. ऑल राइट, तो विड्रॉ करते हुए ये क्या करेगा, अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ले आएगा, और क्योंकि ये विड्रॉ कर लेगा तो कार्बन के पास क्या बचेगा, कार्बन चेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये जो इफेक्ट्स हैं दीज आर कॉल्ड प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट्स. ऑल राइट, तो अब मैं कुछ इसकी एप्लीकेशंस का पार्ट भी डिस्कस करूंगी. उससे पहले I will whole summarize this topic in one line, that the inductive effect is the partial displacement of what, हमारा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड. alright, so it is the partial displacement of electron cloud of the carbon chain in an organic compound either towards or away from the electronegative or electropositive element. alright, either what I said, either towards or either away from the electronegative element or electropositive element. इन एलिमेंट्स की तरफ या इन एलिमेंट से दूर जो है वो डिस्प्लेसमेंट होती है. तो यही हमने डिस्कस किया है यहाँ पे. सो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, इसकी टुवर्ड्स जा रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था तो इससे अवे जा रहा है. ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्रीफ समरी ऑफ व्हाट इज प्लस आई इफेक्ट एंड व्हाट इज माइनस आई इफेक्ट. ऑल राइट, so before jumping to the application part, I would like to discuss the order for the plus I and minus I effect, and which are the compound which shows the highest plus I effect and which are those which show the highest minus I effect. So from this order we can easily see that अगर कोई मिथाइल ग्रुप है it shows positive or we can say plus I effect. Alright, plus I effect कौन सा effect था, इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग, प्लस आई है, वो भला आदमी है, ठीक है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. सो इफ देयर इज वन मिथाइल इट शोज प्लस आई इफेक्ट. इफ देयर आर टू मिथाइल द कंबाइनिंग इफेक्ट ऑफ टू मिथाइल विल बी देयर. अगर वहां पे 3 मिथाइल्स है तो कंबाइनिंग इफेक्ट ऑफ 3 मिथाइल्स विल बी देयर. लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब कार्बन के साथ यहाँ पे कार्बन चेन अटैच्ड होगी, सो यहाँ से इसका प्लस आई इफेक्ट, इसका प्लस आई इफेक्ट और इसका प्लस इफेक्ट इस कार्बन के ऊपर होगा, और इसका जो होगा, जो भी यहाँ पे अटैच्ड ग्रुप होगा, ये प्लस आई इफेक्ट उसको शो करेगा. सो दिस विल हैव द हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट. सो ये जो ऑर्डर है जो पिंक कलर में है, दिस शो द ऑर्डर फॉर प्लस आई इफेक्ट. ऑल राइट. सो अब इधर देखो जी, हाइड्रोजन इज द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ हेयर, ठीक है. अब यहाँ से जो हेलोजन्स हैं हमारे, हेलोजन्स में वी नो दैट फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फोन. ऑल राइट. सो इन बिटवीन हेलोजन्स इफ वी से फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट माइनस आई इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट कौन सा होगा जी हमारा, माइनस आई इफेक्ट आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग. क्यों इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है ये, ऑल राइट, क्यों है ये, बिकॉज दीज ऑल आर व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. सो जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हेलोजन्स का ऑर्डर होता है, सेम इज द ऑर्डर फॉर दैट माइनस आई इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी का. ऑल राइट. सो फ्लोरीन हैज द माइनस आई इफेक्ट ऑफ हाइएस्ट टेंडेंसी एंड देन फॉलोड बाय क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ऑल राइट. सो दिस वॉज द ऑर्डर. आई होप ये जो ऑर्डर है आपको समझ आ गया होगा, और इस ऑर्डर को अच्छे से हमेशा अपने माइंड में रखना है, बिकॉज दिस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वी कैन सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशन पार्ट. सो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू कंपेयर द ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस. Alright, so which acid is a strong acid, which acid is a weak acid, we can compare this just by having knowledge of inductive effect. अब ये कैसे होगा जी, so देखो what are the organic acid. अब organic acid जी वो acids होंगे which releases H positive ion, we know that. अब जो है, अगर हमारा जो हाइड्रोजन है ये H positive ion कब रिलीज करेगा, इसकी टेंडेंसी H पॉजिटिव आयन रिलीज करने की कब ज्यादा है, जब ये किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ज्वाइंड होगा. जब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ज्वाइंड होगा तभी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपनी तरफ ले लेंगे एंड H पॉजिटिव विल बी रिलीज्ड. अब यहाँ पे तो मैं मिनरल एसिड की बात कर रही हूँ, बट लेट्स कंपेयर ऑर्गेनिक एसिड, बिकॉज ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं दे आर समवॉट वीकर देन दैट ऑफ द मिनरल एसिड्स, बट उनकी जो एसिडिटी होती है दे शुड बी कंपेयर्ड ऑल्सो. सो वो एसिडिटी अब हम कैसे हम देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस जो होंगे हमारे उसकी वजह से होंगे, ठीक है. तो उसके बेसिस के ऊपर जो होंगे हम वो चेक करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है. लेट्स से मेरे पास 3 तरह के एसिड्स हैं. फर्स्ट एसिड इज माय स्ट्रॉन्ग एसिड, ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. सेकेंड इज मेरे पास जो है एक वीक एसिड है, और मेरे पास देन एक कंपाउंड है. ऑलराइट, ये वीक एसिड है और ये मेरे पास एक नॉर्मल कंपाउंड है. सो लेट्स डिस्कस कि हाउ आई कैन कंपेयर एसिडिटी ऑफ ऑल दिस. अब बिकॉज ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों ये स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इन दिस केस, इन फर्स्ट केस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज मोर देन दैट ऑफ वाई. अब ये तो हाइड्रोजन है, ऑलराइट. हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी अभी डिस्कस्ड, जो ऑर्डर था उसमें क्या था, हाइड्रोजन वाज इन सेंटर. सो हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता है. सो जो एक्स होगा, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर देन हाइड्रोजन, सो इट विल टेक ऑल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. ऑलराइट. सो यहाँ से क्या होगा, बिकॉज हंगर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एक्स इट इंक्रीजेस, देयरफॉर यहाँ से अब H पॉजिटिव का निकलना आसान हो जाएगा. अगर देखो सिंपलेस्ट वे में, अगर हाइड्रोजन था, इसका इलेक्ट्रॉन ये अपने पास लेके बैठा हुआ है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन का जो सारा शेयर्ड पेयर था वो इस तरफ को अटैक्ड है, तो ये इसके लिए हाइड्रोजन के लिए आसानी हो जाएगी निकलने के लिए H पॉजिटिव बन के, बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉन तो एक्स ने ऑलरेडी लिया हुआ है. अगर इस केस में देखो,
इस केस को मैं बोल रही हूँ इट इज़ अ वीक एसिड. वाई वीक एसिड? बिकॉज अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो Y की है दैट इज हमारी काफ़ी लो है देन दैट ऑफ दिस X. बिकॉज ये X से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये खींचेगा तो सही अपनी तरफ शेयर्ड पेयर को, लेकिन ये उतना नहीं अपनी तरफ को, इसकी टेंडेंसी नहीं है इतना अपना शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखने की जितनी X की है. सो जितना जो ये था, जितना इसने शेयर करना था इतनी नहीं कर पा रहा है. तो हाइड्रोजन के पास अभी भी इसकी कुछ टेंडेंसी है, तो ये जितनी जल्दी ये हाइड्रोजन रिलीज हो उतनी जल्दी ये नहीं रिलीज होगा. दैट्स वाई इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट इज अ वीक एसिड. ऑलराइट, अब थर्ड केस देखो. अब थर्ड केस में इट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन. अब कार्बन एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, सो दे आर नल. दैट्स वाई अब ये हमारा नॉन एसिडिक होगा, इट इज नॉट एसिडिक. ठीक है. अब मैं अगर जनरलाइज्ड पॉइंट अगर एक बताना चाहूँ तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट में क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इफ, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि जितनी पोलैरिटी किसी भी बॉन्ड की ज्यादा होगी, ध्यान से सुनो, मोर द या ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड, ये पोलैरिटी थी, पोल्स जो थे बहुत ज्यादा अच्छी तरह जनरेट हो रहे थे यहाँ पे पोल्स बिल्कुल अच्छी तरह जनरेट नहीं हो रहे थे. More the polarity of a bond, stronger is the acid. Alright, so polarity जितनी ज्यादा होगी उतना एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है. जितनी ज्यादा पोल्स क्रिएट होंगे, मतलब पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, जितना हाई इंटेंसिटी का क्रिएट होगा उतना वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा. जितना वो वीक क्रिएट होगा उतना ही वो एसिड वीक होगा. ठीक है. नेक्स्ट मूविंग टू, अब मैं यहाँ पे एक तुम्हारे साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ. ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड्स में भी पूछा जाता है बहुत आसानी से, दैट विच इज मोर एसिडिक, अल्कोहल और वाटर. अब हमें पता है जी अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROH जनरली अगर मैं लिखूं. सो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कोहल. वाटर क्या क्या होता है? H2O. तुम H2O को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, H2O. ठीक है, लिख सकती हूँ मैं इस चीज को. तो अब इसको देखो, अब ये ROH था, अब ये HOH है. जनरली बच्चे क्या बोलते हैं कि अल्कोहल इज मोर एसिडिक, क्योंकि उन्हें लगता है कि वाटर एसिडिक कैसे हो सकता है. वाटर तो हम बोलते हैं जी न्यूट्रल होता है. ऑलराइट, हम बोलते हैं वाटर हैज अ न्यूट्रल पीएच और हम उसको कंज्यूम करते हैं, तो हाउ कुड वाटर बी एसिडिक? तो आंसर अल्कोहल होगा. उनके ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, बट लेट मी टेल यू, जो वाटर होता है दैट इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल. हाउ दिस इज हैपनिंग? सो लेट अस डिस्कस. सो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो कि जो ऑक्सीजन है इट हैज इट्स लोन पेयर. दोनों के पास अपने अपने 2 लोन पेयर हैं. फर्स्ट केस में जी यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है. अब ये हाइड्रोजन को रिलीज करवाना है यहाँ से. ठीक है, ये हाइड्रोजन रिलीज होगा तभी तो वो एसिडिक बनेगा. अब हाइड्रोजन जो जल्दी रिलीज कर देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा. मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि वाटर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वाटर को अपना हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से जल्दी रिलीज कर देना चाहिए. ठीक है, अब ये कैसे होगा? अब यहाँ पे अल्कोहल में देखो R ग्रुप जो है वो ज्वाइंट है. R ग्रुप मतलब एक अल्काइल ग्रुप. अब अल्काइल ग्रुप क्या करेगा? R जो है हमारा क्या करता है? R जो हो है हमारा दैट विल शो +I इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन व्हाट? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट. यही है जी. R जो होगा वो +I इफेक्ट शो करेगा. क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारी कार्बन चेन है, मिथाइल ग्रुप्स हैं उसके पास. जैसे ही वो +I इफेक्ट शो करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी हमारी वो ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. सो यहाँ पे मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर क्रिएट हो रहा है. अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है तो क्या ऑक्सीजन जो है, जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को लेके बैठा हुआ था यहाँ से, तो क्या वो और इलेक्ट्रॉन ले पाएगा? अगर आप इतना ज़्यादा खाना खा चुके हो फिर भी मैं आपके सामने कोई डिश ला के रख दूँ तो आपकी टेंडेंसी नहीं है, तो आपका पेट ऑलरेडी फुल है, तो क्या आप वो खाना खा पाओगे? नहीं.
सो जब ऑक्सीजन को पीछे से ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पीछे से मिल रहे हैं, तो वो हाइड्रोजन की तरफ से जो शेयर्ड पेयर था, जो उसकी तरफ को बॉन्डेड था, वो इलेक्ट्रॉन को ले ही नहीं पाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, अगर ये ऑक्सीजन अपनी तरफ को ले ही नहीं पा रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, अपनी तरफ रखेगा तो सही, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी जो उसकी हंगर है, उसकी भूख मिटाने के लिए एल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। तो अगर वो ले ही नहीं पाएगा तो वो हाइड्रोजन यहाँ से इजीली रिलीज कर नहीं पाएगा। बट वाटर के केस में देखो, वाटर के केस में क्या यहाँ पे कोई प्लस साइड इफेक्ट है? क्या हाइड्रोजन प्लस साइड इफेक्ट शो करता है? नहीं। सो अगर हाइड्रोजन प्लस साइड इफेक्ट शो नहीं करता है तो ऑक्सीजन की क्या भूख मिटी? उसको कोई था देने वाला इलेक्ट्रॉन? नहीं। तो अगर ऑक्सीजन का हंगर अभी भी उतना ही है तो वो क्या करेगा? अपना हंगर खत्म करने के लिए जो ये शेयर्ड पेयर था, जो इस तरफ को बॉन्डेड था, बिकॉज ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका इलेक्ट्रॉन ये फटाफट ले लेगा और ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज करवा देगा। समझे इस चीज को? अब जैसे ही ये H पॉजिटिव रिलीज करवाएगा, यही मैंने बोला था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? H पॉजिटिव जल्दी रिलीज हो रहा है, तो जल्दी रिलीज हो रहा है, इट मीन्स वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो कौन सा एक स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ? वाटर और अल्कोहल? वाटर। ठीक है। सो एक जनरलाइज स्टेटमेंट हमेशा हमेशा याद रखनी है, मोर द हंगर ऑफ ऑक्सीजन फॉर इलेक्ट्रॉन, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन को भूख होगी किसी इलेक्ट्रॉन की, उतना ही वो एसिडिक होगा। अगर वो भूख किसी तरह से, अगर वो हंगर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्सीजन, अगर वो किसी तरह से डिक्रीज हो रही है कोई प्लस साई शो करने वाले कंपाउंड से, तो वो एसिडिटी कम हो जाती है। ठीक है। तो वो क्या बोला मैंने? एसिडिटी कम हो जाती है। मैं अगली एक और एग्जांपल डिस्कस करती हूँ। अब हमने यहाँ पे ये देखा, हंगर ऑफ ऑक्सीजन फॉर इलेक्ट्रॉन इट वाज रिड्यूस ड्यू टू प्लस साई इफेक्ट करके रिड्यूस हो गई थी। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल कराऊंगी जिसमें आई विल शो यू कि अगर माइनस साई इफेक्ट होगा तो ये हंगर जो होता है इंक्रीज हो जाता है और उसकी एसिडिटी और क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू डिस्कस इज जो हमारा एसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। सो ये क्वेश्चन भी आता है, सो लेट अस डिस्कस। ओके, सो लुक एट दिस। सो अब वी हैव टू कंपेयर एंड गिव अ ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर दीज ऑल। ओके, तो ये हमारे पास है एसिटिक एसिड, दिस इज क्लोरोएसिटिक एसिड, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके क्लोरीन लग गया। दिस इज डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, दो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके दो क्लोरीन लग गई। और ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, तीनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके तीन क्लोरीन वहां पे अटैच हो चुके हैं। ऑलराइट। सो अब अगर मुझे एसिटिक एसिड की बात करनी है, ठीक है, एसिटिक एसिड में अब एसिडिक कैरेक्टर कौन देगा? ये वाला हाइड्रोजन। ऑलराइट। सब में इस हाइड्रोजन ने एसिडिटी बतानी है जी। जब ये हाइड्रोजन जो है, सॉरी यहाँ पे गलती से OH लिखा गया है, इट्स H। ठीक है। जब ये हाइड्रोजन जो है इट विल बी रिलीज्ड, तो क्या होगा? कोई भी एसिडिक माना जाएगा। ठीक है। अब आई हैव टू कंपेयर इन चारों में से कौन जल्दी अपना हाइड्रोजन जो है वो रिलीज कर देगा। ठीक है। एसिटिक एसिड की अगर बात करें, सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप क्या करेगा जी? अपना प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। CH3 ग्रुप है, तो ये जो है CH3 ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ लेके आ रहा है? दिस ऑक्सीजन के पास, जिसके पास ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है यहाँ पे। तो मैंने पहले भी ये चीज बताई थी, बिकॉज अब यहाँ पे हंगर ऑफ ऑक्सीजन फॉर द इलेक्ट्रॉन इज कंपेंसेटेड बाय whom? CH3 ग्रुप, उसका प्लस आई ग्रुप वो शो कर रहा है। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा, बट वो टेंडेंसी कम है बिकॉज पीछे से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अच्छे से आ रहे हैं और हंगर डिक्रीज हो रहा है। ऑलराइट। सेकंड में देखो जी, क्लोरोएसिटिक एसिड। क्लोरोएसिटिक एसिड में दिस क्लोरीन, व्हाट डज इट शो? इट इज अ माइनस आई ग्रुप। व्हाट? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है जी।
अब ये डोनेटिंग नहीं है, विदड्रॉ कर रहा है। तो विदड्रॉ कर रहा है इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन चेन से ले रहा है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अब ले रहा है तो क्या होगा, जो ऑलरेडी यहाँ पे पास जो लोन पेयर था, तो ये इस कार्बन फाइनली कर क्या रहा है, कार्बन ये कार्बन से ले लेगा, कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को कम्बैट करने के लिए इस कार्बन से लेगा, तो ये कार्बन अपना कम करने के लिए इससे ऑक्सीजन से खींचना शुरू कर देगा। तो मतलब फाइनली ये माइनस आई जो है वो ऑक्सीजन का हंगर क्या बढ़ा रही है, बेचारे को पहले ही भूख लगी हुई थी, वो भी हम उसका खाना भी उससे ले ही जा रहे हैं। सो उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस आई ग्रुप एक लगा हुआ है। सो दैट्स वाई अब हंगर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हंगर क्या हुई, ऑफ ऑक्सीजन फॉर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गई, यही हुआ। नेक्स्ट में देखो जी, अब यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट करने वाले ऐसे दो ग्रुप्स हैं। सो यहाँ पे भी क्या होगा, हंगर इंक्रीजेस, लेकिन थोड़ी सी इंक्रीज इसमें क्या हुई, ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो तीनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को विड्रॉ करते जा रहे हैं। सो इसके पास तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसकी हंगर तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा होगी। तो ये क्या करेगा, इतनी जल्दी इस हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींचेगा कि ये इसको जल्दी से H पॉजिटिव जो है बाहर कर देगा। ये भी खींचेगा बट इसके कंपैरेटिवली कम खींचेगा, ये भी करेगा H पॉजिटिव रिलीज, बट किसके कंपैरेटिवली, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के कंपैरेटिवली कम करेगा। क्लोरोएसिटिक एसिड डाइक्लोरोएसिटिक के एसिड के कंपैरेटिवली कम रिलीज करेगा। ऑलराइट, और एसिटिक एसिड, अब एसिटिक एसिड जो है वो इन चारों में से सबसे क्या होगा, वीक एसिड होगा, बिकॉज इट हैज व्हाट, प्लस आई ग्रुप अटैच्ड विद इट। ठीक है जी, अगर मुझे अब इसका एक पूरा सिक्वेंशियल ऑर्डर देना हो तो मैं उस ऑर्डर को क्या बोल सकती हूँ कि जो मेरा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है, इट इज मैक्सिमम इन इट्स एसिडिटी, देन डाइक्लोरो, देन क्लोरोएसिटिक एसिड, देन एसिटिक एसिड। ठीक है, सो ये मैंने क्या बताया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमें यही शो करती है कि जो माइनस आई वाले ग्रुप्स होते हैं, ये जो होते हैं एसिडिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, और जो हमारे माइनस आई ग्रुप वाले होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होते हैं, ये हमेशा एसिडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ऑलराइट, सो एसिडिक कैरेक्टर्स आई होप समझ आ चुके हैं। एसिडिक कैरेक्टर्स में माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी को कैसे हमारा है वो इफेक्ट करता है, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट दोनों क्या है, दोनों के ग्रुप्स कौन कौन से हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले एंड माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले, ये ग्रुप्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप कोई भी ऑर्डर दे पाओगे। जब तक आपको कोई ग्रुप नहीं पता होगा, आइडेंटिफाई नहीं करोगे किसी ग्रुप को कि वो माइनस आई में आएगा या प्लस आई में आएगा, तब तक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन एंड अरेंज द ऑर्डर। सो आई होप कि ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आप वो अच्छे से ध्यान रखोगे। एंड फ्रेंड्स, अगर मेरे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करना है सो यू आर मोस्ट वेलकम, और मैं इसके आगे सारे पार्ट्स भी बनाऊंगी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, आई विल डिस्कस देम टू। सो हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कि आपको नेक्स्ट वीडियोस जो है वो कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर चाहिए। Hope it was beneficial for you. I would be very happy if you take a moment and subscribe to my channel. Thank you.